जी भाई, अस्सलाम वालेकुम once again. This is going to be the lecture number 3 on the rate of reaction, right? ठीक है. And in the previous lesson, we were discussing how to find out the what is rate of reaction and what could be the factors that can affect the rate of reaction. ठीक है. We discussed the concentration of any solution if the concentration increases, then more number of particles of solute are added, then the rate of reaction would be increased, right? And if we increase the pressure of the gases, so they are going to increase faster and reaction becomes fast as well. Surface area of the solid, आप किसी भी चीज का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हो, लाइक इफ यू रिएक्ट टू सब्सटेंसेस इन अ पाउडर फॉर्म और क्रश और चंक्स में, अगर आप किसी चीज को रिएक्शन कराते हो तो दैट विल टेक लेस टाइम टू रिएक्ट एंड विल फॉर्म अ प्रोडक्ट क्विकली. Okay, so we'll change into product quickly. So this is how, by increasing the surface area of the solid substances, okay, will make the reaction faster. Okay, so this is the example is also written here. 5 gram of fine powder of a compound will have a faster reaction rate than a 5 gram of a lump of the same compound. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट शुगर पार्टिकल्स, राइट? तो अगर मैं आपको बहुत सारे पार्टिकल्स एक स्टिक करके कंबाइन करके आपको दे दूं, और अगर मैं उसको पीसेस में करके दूं, सो व्हाट आई मीन व्हाट डू यू थिंक दैट विच इज गोइंग टू रिएक्ट फास्टर, a powdered form or the big pieces of sugar? आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन. जो आपके शुगर के पार्टिकल्स हैं, वो पाउडर फॉर्म में जल्दी रिएक्ट करेंगे या वो बड़े पीसेस के अंदर वो रिएक्ट करेंगे? In powder form. पाउडर फॉर्म विल हैव द लार्ज सरफेस एरिया, दैट्स व्हाई the rate of reaction becomes faster. Okay, now if you want to dissolve the solution, sorry, sugar, so would you like to increase the temperature so that the energy will be given to you and the reaction becomes faster? Yes. तो आप क्या करोगे? आप हीट अप Yes. करोगे ना. तो जी. एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द रिएक्शन बिकम्स फास्टर एज वेल. क्लियर बेटा? ठीक है जी. अच्छा, वी ऑल्सो डिस्कस देयर इज अनदर फैक्टर, एडिंग और रिमूविंग अ कैटलिस्ट. ठीक है. सो इट डिपेंड्स कि आप कैटलिस्ट जो ऐड कर रहे हो, ठीक है, वो कोई ऐसा पॉइजनर तो नहीं है जो रिएक्शन को स्टॉप कर दे. ठीक है. Otherwise, most of the catalyst, when they get added, so they increase the rate of reaction. Is this clear? ठीक है. So remember, a catalyst increases the rate of reaction and remain unchanged itself. Okay. At the end of the reaction, it will remain unchanged. जैसा आपने उसको ऐड किया होता है कैटलिस्ट को, वो वैसा ही रहता है. रिएक्शन करवा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है. ठीक है. और दो दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाने का काम करता है. ठीक है जी. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड द स्टीपनेस ऑफ द rate of a reaction, the graph of the rate of reaction. The more the steeper the graph, faster the reaction will be, or faster the rate of reaction. This is clear? ठीक है. So this is all about that we discussed in the last class. Now we are talking about methods for investigating the rate of reaction, right? So what are you observing on this in this picture? जी, आपको क्या लगता है इस पिक्चर में क्या हो रहा है? जी बेटा, what are you observing in this picture? What are the reactants? ओके. आप रिएक्टेंट्स को तो बता सकते हो ना मुझे? यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ तो है. कांट यू सी बेटा? जी बताएं. जी, स्पीक अप जी बेटा. सर. ये रिएक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाँ, रिएक्टेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्टिंग विद व्हाट? मार्बल चिप्स.
marble chips, right? So hydrochloric acid is reacting with marble chips. So अगर आपके पास 98.26 ग्राम इनिशियल आपका मास जो है वो 98.26 है इनिशियल, ठीक है, क्लियर? when they are when they have not started reacting, so their combined mass is 98.26 ग्राम, ठीक है, इंक्लूडिंग द मास ऑफ द फ्लास्क एज वेल, ठीक है, इंक्लूडिंग द मास ऑफ द फ्लास्क एज वेल, ठीक है. नाउ डू यू थिंक दैट इफ द रिएक्शन स्टार्ट्स, so we are going to get a less value here, क्या मास में डिक्रीज होना शुरू होगा? विल द वैल्यू बी डिक्रीज्ड जब रिएक्शन स्टार्ट होगा? तो चलें इसकी पहले इक्वेशन लिख लें आप लोग, इस तरह तो खैर मुझे लगता है कोई जवाब नहीं आएगा. HCl रिएक्शन कर रहा है किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे रिएक्शन कर रहा है? मार्बल के चिप्स से. मार्बल के चिप्स क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. जी, काइंडली कंप्लीट दिस इक्वेशन योरसेल्फ. आई विल नॉट कंप्लीट. कहीं से भी देखें कुछ भी करें, इसको रिएक्शन को कंप्लीट करें आप लोग पहले. HCl और कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करके क्या करेंगे? सर ये मार्बल चिप्स लाइमस्टोन होती हैं. हम्म, यस. जी बेटा, बताइए बेटा. बेटा प्रोडक्ट आप लोग बताएं मुझे. एटलीस्ट इनको चार्जेस लगा दें बेटा आप लोग, इनके ऊपर चार्जेस तो लगा दें. हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, क्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा, कैल्शियम पे क्या चार्ज आएगा, कार्बोनेट पे क्या चार्ज आएगा? बेटा फिर मैं क्या आपको, आप लोगों को क्या पढ़ाऊँ आगे? जब तक आप ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करेंगे मैं आके आपको क्या बताऊंगा? सर इट शुड बी कैल्शियम क्लोराइड टू. यस, गुड. कैल्शियम क्लोराइड, एक्सेलेंट. कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, क्योंकि कैल्शियम का पॉजिटिव 2 होता है वो कैल्शियम लिखा जी. जाए. इसके उसके बाद बाद प्लस H2 हो जाएगा. वंडरफुल, गुड. H2O. H2O, चलें ठीक है. HCO3 है लिखा हुआ, HCO3. मैंने आप लोगों को एक बताया लिखा था हुआ है HCO3 का लिखा हुआ है. ये जी. HC, सर फिर CO का H, क्या करेंगे? H2O और CO2, राइट? दिस इज व्हाट यू सेड, राइट? यही कहा था आपने, H2O CO2. जी 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 जी. चलें, गुड गुड, एक्सेलेंट, वंडरफुल वंडरफुल. भाई इक्वेशंस आ गई हैं. अब आप प्रो हो गए हैं, अब आप प्रो हो चुके हैं, ठीक है. सर अभी पेपर में पता चलेगा कौन कितना प्रो है. अच्छा. अब मुझे बताओ कि दो, यहाँ पे आप देख रहे हो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि दो हो गई हैं वो? आपको दिख रहा है एक कैल्शियम दो हो गया ना यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन भी दो हो गया, है ना? जी तो ये दोनों दो हैं, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो ये एक एक है. देन वी हैव टू पुट टू हेयर इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस. ओके, अब ये 2H के लिए भी होता है, ये 2Cl के लिए भी होता है. टू वन जा टू. एच जो है वो 2 हो गए. Cl भी कितने हो गए? 2 हो गए. टू Cl को करोगे तो 2Cl आएगा. H के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2H आएगा. मीन्स के ये H दो हो गए और Cl भी दो हो गए. इज द इक्वेशन बैलेंस्ड? इज द इक्वेशन बैलेंस्ड? यस. हाँ हाँ भाई, कैल्शियम कितने हैं? 1 है, यहाँ पे भी 1 है. जी कार्बन हो गई बैलेंस. साइड CO2 है, और उसका एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ चुका है. तो नाउ इट इज बैलेंस्ड. ओके. इज द गैस, इज द गैस प्रोड्यूस्ड हेयर? गैस बन रही है? जी सर बन रही है. कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे बैठी रहेगी? सर ऊपर जाएगी लेकिन क्योंकि कॉटन वूल वो हम्म लगा हुआ है ना हम्म पी करके हम्म ऊपर, उसकी वजह से वो
ठीक है, वही रहेगी। रहेगी तो मतलब ऊपर रहेगी, ऊपर जाके चलो हम इसको ये भी मान लेते हैं कि ये ऊपर से स्केप आउट हो जाएगी, जितनी जितनी इसको स्पेसेस मिलेंगी गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी, राइट। ठीक है, बात समझ आ रही है कि गैस बाहर चली गई, यहाँ तक तो समझ आ गई, गैस बाहर चली गई। मुझे बताओ 98.26 का क्या होगा, 98.26 का क्या होगा? 98.2.6 कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, वंडरफुल, अब समझ आई, क्लियर। तो अब आप जरा गौर से देखें, ग्राफ को देखें। ज़्यादा ज़्यादा कितना हो जाएगा सर? 98 ही हो जाएगा। मे बी पॉसिबल 90। अच्छा, इसके कार्बन डाइऑक्साइड है 4। लेकिन गैस का कितना ही वॉल्यूम होगा? नहीं नहीं, वॉल्यूम 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 तो नहीं, हम यहाँ पे मास ले ओ रहे हैं सॉरी, इन ग्राम। वेट। ठीक है, हम इन ग्राम्स ले रहे हैं। ओके, ठीक है। तो हमारा तकरीबन 44 ग्राम भी कम हो सकता है वैसे तो। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पर आप एक चीज गौर से देखिए कि ये ग्राफ का मास कितना आ रहा है, मास यहाँ पे मास है ना, वाई एक्सिस पे मास है ना, है ना बेटा, वाई एक्सिस पे मास है या नहीं है, प्लीज बता भी दिया करो यार। वाई एक्सिस पे जी जी मास सर सर। है। है। तो बेटा वो कितना ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है ग्राफ? ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे आ ऊपर रहा है, से तो नीचे। क्या कहने से दिस इज 98.26। यस। सो इट यस। इज इट कमिंग डाउन, यस। एंड इज इट कमिंग ग्रेजुअली डाउन? यस। ठीक है। तो ये जो आप इनिशियली इसका देख रहे हो ग्रेडियंट जो है, वो हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन बताता है, क्लियर। ठीक है, जो आपका ग्रेडियंट होता है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन बताता है, सही। व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट रिएक्शन? ओके, इज इट, इफ इट इज स्टीपर, इफ इट इज स्टीपर, दैट मीन द रिएक्शन इज फास्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ ये वाई एक्सिस के करीब है या वाई एक्सिस से दूर है? वाई एक्सिस से करीब होता जा रहा है या वाई एक्सिस से दूर होता जा रहा है? सर वाई एक्सिस से करीब होना है। करीब हो रहा है। करीब हो रहा है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सॉरी, दूर हो रहा अल्लाह है, एक्स ताला, के करीब हो रहा है। अल्लाह ताला मेरी और हम सब की जो है ना वो मदद करें, और कुछ नहीं। ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, या ये लास्ट वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये वाई एक्सिस से दूर जा रहा है ना, दूर जा रहा है ना। दैट जी। मीन्स कि मास आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 उसने आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, रेट उसका, उसका रेट क्या हो गया, ग्रेडियंट क्या हो गया। अब यहाँ पे ग्रेडियंट कुछ और है, यहाँ ग्रेडियंट क्या है, कुछ और है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। आपको ये लग रहा है कि ये डिफरेंट ग्रेडियंट यहाँ पर बनेंगे, बिकॉज सिंस इट इज अ कर्व। एक आपका ये ग्रेडियंट बनेगा, एक आपका ग्रेडियंट ये बनेगा, और एक इनिशियली उन्होंने बना के खुद दिया है। तो एक आपका ग्रेडियंट यहाँ पे चेंज होगा, एक ग्रेडियंट यहाँ भी चेंज होगा। हर पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या हो रहा है आपका, हर पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो चेंज हो रहा रहा है। है। इसका मतलब कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या कांस्टेंट है, या वो टाइमली चेंज हो नहीं, रहा है? फैमिली चेंज हो रहा है। एक्सीलेंट, बिकॉज द ग्रेडियंट इज चेंजिंग, ग्रेडियंट इज नॉट कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? इसका मतलब नहीं। ये हुआ कि whatever the mass is lost, whatever the mass is lost, right, that will give us the indication the rate of reaction becomes slow, the rate of reaction becomes slow। और वो सारी चीजें किस में बनती जा रही हैं, किस में कन्वर्ट होती जा रही हैं, किस में कन्वर्ट होती जाएंगी बेटा? गैस आपके प्रोडक्ट में, किस में कन्वर्ट हो रही है? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो कितना मास, हाउ मच मास, हाउ मच मास इज लेफ्ट, या तो आप ये इसकी बात करोगे कि वो कितना रह गया है, या आप ये कह सकते हो कि हाउ मच मास, हाउ मच मास इज रिलीज्ड। ठीक है,
हाउ मच मास इज रिलीज्ड, कितना मास आपका रिलीज हो चुका है, और वी कैन ऑल्सो से लॉस्ट, कितना लॉस हो गया, कितना रिलीज हुआ है, या कितना लेफ्ट है। ठीक है, इज इज क्लियर। सो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड और मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड और द वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर्म्ड। अब मुझे बताओ ये वॉल्यूम ऑफ गैस का कैसे पता करोगे। मास का तो तुम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज कर लोगे, मास का तो तुम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से बता दोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस अपनी रीडिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। रीडिंग, लेकिन तुम वॉल्यूम का कैसे बताओगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे बताओगे जी। डिड आई तो निकालने कोई ना कोई फॉर्मूला है। डिड आई टॉक अबाउट दिस कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे हम्म। आपके कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, यहाँ पे आप जो है वो एक सिरिंज लगा देंगे, यू रिमेम्बर, यस। ये मैंने आप लोगों यार को। तरीका लगाएंगे सर, तो कॉर्डिनेट हटा के वो लगा दें। हाँ, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होगी, और यहाँ पे प्लंजर होगा, और ये प्लंजर जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा। सो वट एवर द वॉल्यूम ऑफ द गैस अमाउंट ऑफ गैस formed will be collected in the syringe, right? That will indicate how much volume of gas is formed. ठीक है, refer this diagram. Clear? Is this clear? यस। ठीक है, so there are three things, or there are three ways through which we can measure the rate of reaction, or we can predict the rate of reaction. ठीक है, so what do you think is should there be any unit of rate of reaction? यस। क्या होना चाहिए, मास ऑफ समथिंग। रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट ग्राम में, टाइम किस में, सेकंड में। ये देखो, मास ओवर टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, तो ग्राम अपॉन सेकंड। क्लियर, मास ऑफ प्रोडक्ट, so mass of product should be taken in gram and time should be taken in second. Clear, और ये मिनट्स ये में भी कितने हो सारे सकता फॉर्मूला है ये एक ही चीज के। है। ये फॉर्मूला का है यार, या तो आप विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ रिएक्टेंट देखोगे, या विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ प्रोडक्ट देखोगे, या विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड या फॉर्म्ड, सॉरी फॉर्म्ड, ओके। और आप अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे वॉल्यूम के लिए आप सेंटीमीटर क्यूब लगा दोगे, एंड द टाइम शुड बी टेकन इन सेकंड। क्लियर, ठीक है। So the unit of rate of reaction can be gram per centimeter cube or centimeter cube per second, either mass per second time or volume of the gas formed in unit time. Okay, right. Now we are going to identify what are the factors. सर नहीं नहीं सर, थोड़ा थोड़ा ऊपर करें, स्क्रॉल अप। मैं लिख रहा हूँ। चलें फिर मैं यहीं पे रोक दूंगा, फिर आज की क्लास को यहीं तक रोक लेता हूँ, ठीक है। ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आ गया आप लोगों को कि डिफरेंट ग्रेड, the curve always has different gradients, right, at different points, number one, ठीक है। और हमसे जिस टाइम पर भी हमसे वो कहेंगे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताएं, ठीक है, तो हम वो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और वो पॉइंट पर जाके हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ओके। अगर हमें इस पॉइंट पे निकालना है तो हम इस पॉइंट पे जाके एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अगर हमें इस पॉइंट पे निकालना है तो हम इस पॉइंट पे जाके एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट इज द लाइन दैट टचेस द कर्व, ओके, एट वन पॉइंट ओनली। टेंजेंट इज टच द इज द लाइन, कर्व। हाँ टचेस, आप देख रहे हैं ना, ये जो लाइन मैंने बनाई है यहाँ पे, ये टच कर रही है, यहाँ पे लाइन बनाई ये भी टच कर रही है, यहाँ लाइन बनाई वो भी टच कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जाएगी, ये यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है। इज दिस क्लियर जी। जी। ये एम वाले भाई समझ आ रही है, नहीं आ रही यार, जी है सर बेटा, आ रही है। आ रही है। व्हाट डज ग्रेडियंट जी टेल सर। अस,
सर ग्रेडियंट हमें मतलब वो बताता है ना कि वो क्या जैसे बताता है? हमें किसी भी पॉइंट पे बोलेंगे कि अरे वहाँ नहीं की मैंने बच्चा, स्पीड ऑफ जी रिएक्शन बताता है, ग्रेडियंट स्पीड ऑफ रिएक्शन बताता है। ओके। हाँ अब हाँ आपसे सर अब आपसे ये पूछा जाए कि इस टाइम पे जाके आप स्पीड ऑफ रिएक्शन बताएं, तब आप उस पॉइंट पे जाकर ग्रेडियंट ड्रॉ करेंगे, एंड वट एवर द ग्रेडियंट वैल्यू, दैट विल बी द स्पीड ऑफ रिएक्शन। इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा यस ओके। आई होप द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस अप टिल नाउ। अच्छा, आप कह रहे थे कि पहले वाले लेक्चर में चीज़ें इतनी समझ नहीं आई थी, अब समझ आई बेटा आपको? जी ठीक है, अब क्लैरिटी आ रही है? ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम लेक्चर में फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और कंट्रोल्ड वेरिएबल को देख रहे होंगे। ठीक है इंशाल्लाह। ओके। जी ऑलराइट। ओके। चलिए जी, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। हाफिज। हाँ